Well, I'll just tell you very briefly and then we'll hand it over. So, the Leelavati Hospital was set up in the year 1997. This has been in the memory of my late grandmother, which has been set up at the sheer hard work and instance of my father and mother, Shri Kishore Mehta and Srimati Charu Mehta. Sometime in the year 1997, we started the Seva wing. This is the charity wing of the hospital, which undertakes various medical programs, camps, and we have been conducting free medical treatment for the downtrodden and the indigenous patients right from the beginning. This initiative has been done solely at the instance and at the creation of my mother, who has been instrumental in spearheading the Seva initiative right from several decades. And just to give you a snapshot, we have adopted more than 108 villages till now. We have conducted several medical camps and accorded free treatment to thousands of patients who are physically handicapped, challenged, also in the field, also in the field of oncology, pediatrics, everywhere across the board. And we owe this greatly, and we appreciate that the founder, permanent trustee Srimati Charu Mehta, has started this initiative, and we will ensure that the board of trustees continues this for generations to come. I will now hand over to Deepa, who is also heading the Seva wing, just to give you a brief on this. Sir, what would you like to say on the upcoming any events on Project for Health? Sorry? What would you like to say on upcoming any events and the Project on Health? Like we did a Roshni eye services, where we have done close to 585 free cataract surgeries with multifocal lens. It is not an ordinary lens, it's a multifocal lens. We have started this around a year back, and our target is to complete at least 1,000 patients with both the eyes vision and with multifocal lens. So what are your thoughts on the overall effectiveness of the Nurses Excellence Program and preparing the nurses for their role? Biana? Yeah, so She's the head of nursing. Just please introduce yourself. yeah, I'm Rubiana D'Souza, Chief Nursing for Services, and currently we have undergone training program with Mayo Clinic. So we are basically focusing on specialization in critical care training and OT specialization training. So that is the area of training where our nurses will be enhanced with technologies, with specialized skills, so that we meet the international standard of care, aiming for the excellence patient care. And we are the first hospital to have Mayo Clinic program. This is first time any hospital in India, No, in the world. in the world Yes. in fact, who has decided to take the upgradation of nurses and the training with globally best Mayo Clinic, their own nurses, their own directors. You could have seen they were present, some of them are present, some of them have left with the initial 5-7 days training. So they all have physically come, trained our nurses, they examined our systems, our protocols, our SOPs, they have revised, they have given good updates, they have in fact done classroom training for close to 130 nurses. 130 nurses is a huge amount. Now this 130 nurses will take this step further and they will train other nurses. Sir, is there any mission of Leelavati hospitals, any target or anything else? I will let Saurav Sharma, my co-trustee, address that. Hi, I'm Saurav Sharma. I'm on the board of trustees. So yeah, I'll take this question. It's just not the numbers that we are talking about here. It started on the same note wherein we were helping underprivileged, and I don't know where it is going to end, but then the legacies has to be taken forward. So we cannot commit on the numbers, but then yes, the vision is the same, and we'll all be working on the same roadmap. Thank you. सर ये कभी हिंदी में आना चाहिए। हिंदी में आएंगे सर। वो सेवा इनिशिएटिव के बारे में कुछ रह गया। हिंदी में सर। सर बेहतर जी पूरा बोल देंगे तो। सर आज के इतने बड़े इनिशिएटिव जो लीलावती हॉस्पिटल ने लिया है नर्सिंग एक्सीलेंस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल है?
ये जस्ट आपको थोड़ा ब्रीफ बोल दें कि भी ये लीलावती हॉस्पिटल ये अपना सेटअप और चालू हुआ था इन 1997। ये मेरे दादी के नाम पे चालू हुआ है, जहाँ पे मेरे पिताजी और माताजी श्री किशोर मेहता एंड श्रीमती चारू मेहता ने इनिशिएटिव लेके उनके काम और उनके शेयर हार्ड वर्क से ये हॉस्पिटल का जो प्रारंभ किया है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 350 बेड की अभी, जो फोकस्ड है ऑन वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इनिशिएटिव्स। इसमें हमने मेरी माताजी ने सेवा विंग चालू की थी 1997 में, जहाँ पे जो भी गरीब पेशेंट है उनके लिए पूरा फ्री सुविधा करके, फ्री ट्रीटमेंट करके आज तक हमने 108 विलेजेस को हमने अडॉप्ट किया है और बहुत सारी जो भी हमने सुविधा दी है, जो भी ट्रीटमेंट दिया है गरीब लोगों को बिल्कुल मुफ्त में किया है। और 2000 पेशेंट के ऊपर तो हमने एक साल के अंदर इतना मेरी माता जी का भोगदान है। तो ये जस्ट आपको एक इट्स अ स्नैपशॉट टू शो कि भी हम आगे जाना चाहते हैं और गरीब लोगों की सेवा करना के हमारा मेन फोकस है। हाँ। अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट हमारा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा गिफ्ट सिटी में भी हॉस्पिटल आने वाला है। गांधीनगर में एक विलेज है जिसको, जैसे कि हम सर ने बताया, 108 विलेज हमने अभी तक अडॉप्ट किए। उस विलेज का पॉपुलेशन 5000 है। हम नेक्स्ट विलेज वो टारगेट कर रहे हैं। ऐसे ही सिमिलर कैंप्स जैसे पहले हो चुके हैं, रोटरी क्लब के साथ हमने कैंप्स किए, वैसे ही आई सर्जरीज और भी बहुत सारी सर्जरीज हमने डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ मिलकर वहाँ पे प्लान किया हुआ। तो अब आप लोग ज़्यादातर कैंप्स गांधीनगर और गुजरात में भी देखेंगे। आर्टिफिशियल लिम्ब के ऊपर आपका कुछ प्लानिंग है? नेक्स्ट मंथ अप्रैल 22 2025 में हम आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप प्रोग्राम करने वाले हैं, जहाँ पे 120 पेशेंट्स को हम प्रोस्थेटिस हाई क्वालिटी प्रोस्थेटिक लिम्स प्रोवाइड कर देंगे, टोटली फ्री ऑफ चार्ज। रिनाउंड हॉस्पिटल है मेयो क्लिनिक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ बहुत ग्रुप ऑफ एक्सीलेंट डॉक्टर्स काम करते हैं और वो चेन ऑफ हॉस्पिटल अपना नर्सिंग केयर, अपना मेडिकल केयर के लिए बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कैटेगरी में आता है। उनके साथ टाई अप करके हॉस्पिटल ने अपने यहाँ की नर्सेस का स्तर बढ़ाने के लिए और उनको भी उस लेवल से जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो काम करते हैं, वैसे ही यहाँ का भी नर्सेस का सोच बदले, उनके काम करने की शैली बदले, ताकि वो उसी स्तर का काम कर पाएँ जो स्तर का काम वो कर रहे हैं। इस पूरे उसमें हमने 130 नर्सेस को ट्रेन किया है और ये अभी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुआ है। यही 130 नर्सेस का 6-8 महीना तक ऑफलाइन ऑनलाइन बीच में ट्रेनिंग चल के 8 महीने बाद जब ये 130 नर्सेस ये बेस्ट नर्सेस ऑफ इंडिया हो जाएंगी, क्योंकि ये इंडिया से सीखी हुई हैं, यहाँ से ट्रेंड है और साथ में ये बाहर का भी इनका ट्रेनिंग हो चुका है। तो इस किस्म का जो ड्यूअल ट्रेनिंग होता है, जो 2 किस्म की ट्रेनिंग, उससे एक नर्स के सोचने की क्षमता, उसके काम करने की, उसको अच्छे से काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सर यहीं पे ऑन ड्यूटी होगा या कैसे? ये ऑन ड्यूटी भी होगा, ऑफ ड्यूटी भी होगा, दोनों होगा। इनफैक्ट अस्पताल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था 130 नर्सेस को बीच में निकाल के उनको ट्रेनिंग कराना, पर किसी तरह हमने शेड्यूल्स आगे पीछे करके ये जो 5 हमारे पास ये आए हुए थे ट्रेनर्स, उसमें से एक नहीं आ पाए, 4 ही आ पाए। तो जो 4 ट्रेनर्स आए थे उनका शेड्यूल, हमारे नर्सेस का शेड्यूल, और वो भी 130 का, तो उसको हमने ग्रुप्स में बांटा था। ऑपरेशन थिएटर का अलग था, आईसीयू का ग्रुप अलग था। तो इस तरह हम ऑपरेशन थिएटर के ग्रुप को हम शाम के समय ले लेते थे, ताकि उनका ट्रेनिंग के समय ऑपरेशन सवेरे सब कंप्लीट हो चुके रहें। और क्रिटिकल केयर का सवेरे ज़्यादा काम रहता है, जब डॉक्टर्स राउंड्स पे लेते हैं, तो उनका भी शाम को लिया गया। जो लीडरशिप का था उनका सवेरे ट्रेनिंग लिया गया। तो ऐसा करके सब मिक्स मैच करके ट्रेनिंग्स दिया गया 10 दिन। आगे ये ट्रेनिंग्स आगे भी कंटिन्यू होगी, कुछ ऑफलाइन होगा, कुछ ऑनलाइन होगा। बीच में ऑफलाइन उनके यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, और ऑनलाइन हमारे ये 130 का स्पेसिफिक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।
इनको अपनी सहूलियत से घर पे बाहर जब इनको सहूलियत मिले इनको वो पूरे मॉड्यूल्स अटेंड करके वो उनकी एक सर्टिफिकेशन का जो एग्ज़ाम या जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। कौन सी कंट्री से ये ट्रेनिंग चल रही है और यूएस पूरा कौन सी कंट्री से कितने ट्रेनर हैं कौन से से यूएस से ट्रेनिंग चल रही है। मेयो क्लिनिक करके जो ग्रुप है उनके नर्सेज हैं, सीनियर नर्स एडवोकेट, सीनियर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन लोग यहाँ आके ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन उनके प्रोग्राम्स हैं ये वैसे भी मेयो क्लिनिक के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये हमारी तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से यूनिकली हमारे नर्सेज के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स डिज़ाइन किया गया है जो उन लोग के साथ शेयर होगा ऑनलाइन अभी कुछ समय। ये नर्सेज बहुत ही सीनियर नर्सेज हैं और बहुत ही सीनियर नर्सेज हैं। दे आर एट द डायरेक्टर लेवल और अदर लेवल्स। बहुत साल का एक्सपीरियंस है और उनके अंदर अभी फ़िलहाल मेयो जो ग्लोबल हॉस्पिटल्स हैं मोर देन 20,000 नर्सेज उनके अंदर ये लोग काम करते हैं और ट्रेन कर चुके हैं अभी तक। सर फीडबैक लिए नर्सों से जो सीखा है क्या नया बनाया, क्या चैलेंज था, क्या नया कुछ सीखा? यस तो ये जो ट्रेनिंग है, जो चैलेंज है, जैसे इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज, जैसे हम अभी नॉर्मल करते थे, अभी हम एक्सीलेंट लेवल पे करेंगे विथ न्यू टेक्नोलॉजीज इन इट। सो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। So the level is risen up to high levels. So nurses are now boosted up because India में जो हमें अपने नर्सिंग मिलते हैं तो वो भी उनके पास एडवांस नॉलेज अभी बढ़ गए हैं, इन्हांस हो गए उनके नॉलेज। तो अभी जो एक स्टेप था वो अभी और एक स्टेप अप हो गया। थैंक यू।